Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. So, dear students, in last video we can discuss about method of preparation, and we can start aldehyde, ketone, and carboxylic acid. It is I think it is a fifth class of aldehyde, ketone, and carboxylic acid, right? Where we can discuss about the nomenclature. Then we can discuss about the method of preparation. In method of preparation, first we can discuss how aldehyde and ketone are prepared by using alcohol. तो हमने वहां पे देखा था प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव aldehyde, secondary alcohol on oxidation give ketone. Now today we can discuss about the second method of preparation. So second method of preparation where we can discuss about, first this is preparation of aldehyde and ketone by oxidation of alcohol, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लो. फर्स्ट dehydrogenation of primary alcohol on oxidation with oxidizing agent. हम देखो CrO3PCC copper at 573 Kelvin form aldehyde. Here primary alcohol on oxidation give aldehyde, secondary alcohol on oxidation give ketone with oxidizing agent. Here you can see secondary alcohol on oxidation give ketone, right? Even we can use copper at 573. This is having special name by dehydrogenation of alcohol, जिसको हमने नाम दिया है. Here also primary alcohol on oxidation or dehydrogenation give aldehyde, secondary alcohol on oxidation or dehydrogenation give ketone. Now today it's very important. Today we can discuss about the formation of aldehyde and ketone from हाइड्रोकार्बन्स. इससे प्रिपेयर करेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बाय विच प्रोसेस? बाय ओजोनोलाइसिस प्रोसेस. तो ओजोनोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है एंड बाय यूजिंग ओजोनोलाइसिस प्रोसेस हम लोग कैसे इस रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे वो हम लोग देखेंगे. तो हाइड्रोकार्बन कौन सा यूज करते हैं? तो वी जनरली यूज अल्कीन. कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं हम लोग? जनरली क्या यूज करते हैं? अल्कीन यूज करते हैं फॉर द इफेक्टिव रिएक्शन. तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. तो ओजोनोलाइसिस, लाइसिस का मीनिंग क्या होता है हम लोग देखते हैं. तो यहां पहले डेफिनेशन देखो. व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन टू गिव ओजोनॉइड which on decomposition with zinc dust and water give aldehyde and ketone. मतलब ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? दो स्टेप. एक बार देखो यहाँ पे डेफिनेशन. when alkene react with ozone to give ozonoid which on decomposition with zinc dust and water give aldehyde and ketone. So इसको हम लोग थोड़ा इलॉबरेट करेंगे. तो इस ओजोनोलाइसिस प्रोसेस के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अल्कीन हम लोग यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द रिएक्शन. सो यहां पे हमने क्या देखा है? प्रिपरेशन ऑफ aldehyde एंड कीटोन. कहां से देख रहे हैं हम लोग? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ किससे बना है? एक तो कार्बन से बना, नहीं तो किससे बना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना. दूसरे उसमें एलिमेंट्स नहीं रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन. मींस the organic compound which is made up with only carbon and hydrogen is called as hydrocarbon. It may be saturated or unsaturated. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? from hydrocarbon में first हम लोग देखते हैं from alkene. by which process? ozonolysis. कौन सा प्रोसेस? ओजोनोलाइसिस. अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस क्या होता है? उसका मीनिंग क्या होता है? ओजोनोलाइसिस. ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, एक ओजोन और दूसरा लाइसिस. ओजोन और दूसरा क्या रहता है? लाइसिस. ओजोन मतलब क्या होता है? O3. और लाइसिस का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकडाउन. ठीक है, means the breakdown of alkene in presence of ozone is called as ozonolysis. तो मीनिंग समझ में आ गया? ओजोनोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है? the breakdown of alkene in presence of ozone is called as ozonolysis. अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इस ओजोनोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? तो लेट टेक वन एग्जांपल. सिंपल हम लोग एक अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं. अभी मैंने यहाँ पे अल्कीन की सिर्फ वैलेंसी शो किया. This is the very general structure of alkene, C double bond C. So इस अल्कीन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? O3 को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो this is called as addition reaction. पहले स्टेप में क्या होता है? हम लोग इसको ऐड करते हैं. अब ऐड करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ओजोनॉइड. अब इस रिएक्शन को याद रखने का तरीका बता रहा हूं. मान लो ये एक बहुत गरीब आदमी है,
अल्कीन एक बहुत गरीब आदमी है, उसको रहने के लिए जगह होगा कुछ नहीं है, बड़े मुश्किल से कुछ पैसे जमा करके क्या करता है, एक छोटा सा वो झोपड़ी बनाता है। अब ये अल्कीन है, इसके पास ये मान लो ओजोन क्या एक पैसे है ना, ये क्या प्रेजेंट है, अल्कीन, और उसमें ये ओजोन जो है ये कुछ रुपए के जैसे इसके पास प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, इस रुपए को लेके घर बनाता है, झोपड़ी बनाता है, घर में वो झोपड़ी, मिट्टी की झोपड़ी बनाता है। तो झोपड़ी में क्या रहता है, एक रूफ रहता है और नीचे का बेस रहता है। तो उस प्रकार से याद रखने का तरीका देखो, इस ओजोन को हम लोग अल्कीन में ऐड करना है तो पहला ऑक्सीजन क्या करता है, ये कार्बन कार्बन के एक बॉन्ड को तोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब कार्बन की दो वैलेंसी एज इट इज लिख दो, दो में से एक बॉन्ड टूट गया, ओजोन ने एक बॉन्ड को तोड़ दिया और उसकी जगह क्या बनाया, उसने अपना एक ऑक्सीजन के लिंकेज बना लिया इस तरीके से। ये बात समझ में आई? आता पहले ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, इसमें से एक ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके एक बॉन्ड को ब्रेक किया, समझने के लिए एक बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे खुद वो क्या हो गया, ऐड हो गया है। बचे हुए दो ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, अभी घर का छत बन गया है ना, घर का छत बन गया। अब बचे हुए दो ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस बॉन्ड को भी तोड़ देंगे और यहाँ पे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन ऐसे ऐड हो जाते हैं। समझ में आया? तो हमने तीन ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड किया, पहला ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ऐड हुआ, बाकी के दो ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो दिख रहा है घर जैसा, ये इसका बेस, यहाँ पे क्या है इसका रूफ, बराबर है। अब ये जो ओजोन हमने कंप्लीटली अल्कीन में ऐड किया है, तो द कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड एज ओजोनॉइड्स। क्या बोलते हैं, ओजोनॉइड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्कीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन इट कैन फॉर्म ओजोनॉइड। क्या फॉर्म किया इसने, ओजोनॉइड फॉर्म किया। अब जैसे ही ओजोनॉइड फॉर्म हुआ है, ये ओजोनॉइड क्या होता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। मतलब जिंक का हम लोग पाउडर लेते हैं, जिंक डस्ट। अब क्या होता है, ओजोनाइट बन गया, बेचारा गरीब था, उसने एक मिट्टी का घर बनाया। एक दिन क्या होता है, बहुत बारिश आता है, जैसे रिसेंटली अभी आया मुंबई में, है ना, बहुत जोर से क्या आता है, बारिश आता है। अब बारिश आए तो क्या होगा, बेचारे का मिट्टी का घर था, क्या हो जाएगा, बह जाएगा। बहा दो घर को, मतलब मिट्टी का घर है तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा पूरा। अब तोड़ना कैसे इसको, ओजोनाइट को वाटर के प्रेजेंस में, पानी आ गया तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका पूरा। पहले ओजोन ने क्या किया, डबल बॉन्ड को निस्ते नाबूद किया, तोड़ दिया। वाटर क्या करेगा, जो ऑक्सीजन ने लिंकेज बनाया तो उसको ब्रेक कर देगा। तो देखो तोड़ना कहां से, तीन जगह याद रखो, एक तो यहां से छत गिरेगा और घर का बेस टूटेगा। अब यहाँ पे जो टूटता है तो कैसे, टूटने के बाद क्या होता है, देखो कार्बन ने दो वैलेंसी खो दिया, ये एक बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन हो गया, एक बॉन्ड टूट गया। तो जब हमने देखा था दो बॉन्ड टूटेगा, इन एक्सपेंस ऑफ टू सिंगल बॉन्ड इट कैन फॉर्म वन डबल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कार्बन के पास भी बॉन्ड टूट रहे, देखो यहाँ पे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ से भी बॉन्ड क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो देखो क्या हो रहा है, सिंपल इसको समझेंगे। ये अगर इसका मैं ब्रेक डाउन करता, एक रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक डाउन करो, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, ये ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल। जस्ट मिनट, ये अगर बॉन्ड को मैं ब्रेक करता हूं, एक बार फिर से ब्रेक करते इसको हम लोग, जस्ट मिनट। पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल। अब क्या होता है, देखो ये कार्बन के पास रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ मिलकर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे इसके साथ ये रेडिकल, इसके साथ डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन जो है दो रेडिकल वो वाटर के साथ मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। मैं प्रोडक्ट को ऊपर लिखता हूं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया ऐसे, H2O ने ये ऑक्सीजन लेके क्या बना लिया, यहाँ पे H2O2 बन जाएगा, पेरोक्साइड बन जाएगा। अब बचा क्या, देखो कार्बन, ये कार्बन, कार्बन की कितनी वैलेंसी है, दो वैलेंसी, दो वैलेंसी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन, यहाँ पे इसकी दो वैलेंसी है, दो वैलेंसी। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
और प्लस क्या मिला तुमको यहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट मिला प्लस क्या मिला, H2O2। ठीक है, सो इस प्रकार से अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, इट मे बी कीटोन, वो अल्डिहाइड भी होगा कीटोन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन ये जो इसकी वैलेंसी क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन यूज करता हूँ, सिंपल अल्कीन यूज करता हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, H H H H आ जाएगा, बराबर है। मतलब ये क्या मिला, CHO, ये क्या मिला, CHO, मतलब क्या मिला, अल्डिहाइड मिला, बराबर है। समझ में आ रहा है क्या मिला अपने को, अल्डिहाइड, राइट। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि सर आपने जिंक क्यों डाली, वाटर से तो पूरा काम हो रहा है, तो जिंक की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे रोल पूछा जाता है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक, जिंक मेटल हम लोग क्यों डालते हैं। तो जिंक क्या एक्ट होता है, जिंक एक्ट एज ए reducing एजेंट, ऑलवेज रिमेंबर जिंक क्या करता है, reducing एजेंट एक्ट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, और H2O2 क्या है तुम्हारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन जो है ये अल्डिहाइड को सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा अल्डिहाइड फॉर्म हुआ था, अगर H2O2 को मैंने डिकम्पोज नहीं किया, अगर H2O2 प्रेजेंट है तो ये क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे घुस जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OH। मतलब मुझे अगर मैंने जिंक मेटल नहीं डाला तो पेरोक्साइड क्या करेगा, इस अल्डिहाइड को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट मुझे बनाना क्या है, यहाँ पे अल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है, मुझे एसिड यहाँ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन वी कैन ऐड जिंक मेटल। हम लोग क्या डालते हैं, जिंक, बिकॉज जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिंक का रोल क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तुम्हारा बाय प्रोडक्ट H2O2 फॉर्म होता है, ये जिंक मेटल इस H2O2 के साथ रिएक्ट करके, बिकॉज ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या करता है, दूसरे स्पीशीज को रिड्यूस करता है। और रिडक्शन करना मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये H2O2 को फोर्स करता है कि तू रिडक्शन कर, और ये जब H2O2 रिडक्शन करेगा तो अपना एक ऑक्सीजन क्या करेगा, वो लॉस कर देगा, तो क्या बचेगा, H2O, और ये जिंक उस ऑक्सीजन को लेके क्या बच जाएगा, जिंक ऑक्साइड। मींस यहाँ पे जिंक डस्ट क्या काम करता है, ये H2O2 को डिकम्पोज करके उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट करता है, और एक बार H2O2 नहीं रहेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिवेंटेड। And that's why this is the very important role, zinc dust act as a reducing agent, वो फिर से अल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर एसिड में कन्वर्ट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये रोल समझ में आ गया। नाउ अब मेन आता है ओजोनोलाइज, समझ में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनाना है, घर बनाना है, घर बना के घर को तोड़ना है। क्या बनाना है, घर बनाना है, घर को बनाने के बाद घर को तोड़ना है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इट मे बी अल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। एक तो अल्डिहाइड भी हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। अब हम लोग कंडीशन देखेंगे, कौन से कंडीशन में हमको सिर्फ अल्डिहाइड मिलेगा और कौन से कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, कीटोन। चलो मैंने एक अल्कीन लिया हूं, ये तुम्हारा अल्कीन है, राइट है अल्कीन। यहाँ पे R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, R इज इक्वल टू क्या रह सकता है, एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। फिर वो CH3 हो, फिर वो C2H5 हो, फिर वो C3H7 एटसेट्रा, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ओजोन को ऐड करेंगे। तो मैंने सिखाया था कैसे ऐड करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा अपने को, C, लेट्स सी, COC बॉन्ड, यहाँ पे OOC, यहाँ पे क्या बचा H, यहाँ पे क्या बचेगा R, यहाँ पे क्या बचा H, यहाँ पे क्या बचेगा R। तो क्या मिला अपने को, ओजोनॉइड्स। क्या मिला, ओजोनॉइड्स। इस ओजोनॉइड्स को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस करना है, तो मैं क्या डालूंगा, H2, और यहाँ पे क्या डालूंगा, जिंक। रोल ऑफ जिंक पता है, इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कहां से बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा,
अब H2O क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके चले जाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पे H2O2 बन जाएगा। प्लस अभी क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, अब जैसे ये दो बॉन्ड टूटे मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या प्रेजेंट है, R और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड C, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, कार्बन और इसके पास क्या अटैच है, H। प्लस क्या मिला यहाँ पे क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड C। अभी यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ऑक्सीजन का एक वैलेंसी का कार्बन का एक, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H प्लस H2O2। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, अल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट कौन सा है, अल्डिहाइड। अब H2O2 जो मिला है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, H2O प्लस ZnO। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन को जब मैंने ओजोनोलाइसिस किया इस अल्कीन को, तो मुझे दोनों मॉलिक्यूल किसके मिले, अल्डिहाइड के मिले। अब यहाँ पे कैसे क्लियर करना है कि अल्डिहाइड ही मिलेगा, तो एक चीज बेटा ध्यान में रखना है, अगर कार्बन के पास, देखो अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच रहता है तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, अल्डिहाइड। क्यों, देखो क्योंकि प्रोडक्ट में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, तो ऑब्वियसली क्या है, अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या रहेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। तो अल्डिहाइड के लिए कंडीशन क्या है, both the carbon must having at least one hydrogen atom attached to sp2 carbon of double bond। ठीक है, अगर दोनों हाइड्रोजन रहा तो भी पॉसिबल है। अगर मान लो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएगा, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो भी क्या मिला मुझे, अल्डिहाइड मिला। तो यहाँ पे अगर मैं R ग्रुप लेता हूं तो भी मुझे अल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे R ग्रुप ले लो, यहाँ पे R ग्रुप ले लो, यहाँ पे R ग्रुप ले लो, तो यहाँ पे भी क्या है, R। तो अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए ये दो कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे दोनों ग्रुप R ग्रुप लगा देता हूं, एक तरफ R और एक तरफ क्या है, R और H लगाता हूं, देखो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे H की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला प्रोडक्ट यहाँ पे C R C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद क्या रहेगा, R। अभी अल्डिहाइड है क्या, ये अल्डिहाइड है क्या, नहीं, ये क्या हो गया तुम्हारा, कीटोन हो गया। सो अल्डिहाइड के लिए कंडीशन क्या है, वापस आता मैं अपने इस पे ही, यहाँ पे H, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H ले लिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुमको अल्डिहाइड फॉर्म करना है तो ऐसा अल्कीन लेना है कि जिस अल्कीन में क्या होना चाहिए, तुम्हारा डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, दोनों रहेगा तो क्या बनेगा, दिस कंपाउंड में बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और अगर R ग्रुप है तो एनिल्डिहाइड, और दोनों R ग्रुप है तो क्या बनेगा, अपना कीटोन बन सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड फॉर्म करना है तो कार्बन के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ही तुम्हारा वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज अल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्लियर हुआ, ऐसा अल्कीन जिसके कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर ऑलवेज गिव अल्डिहाइड। अब यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन लिख दो। सिंपल क्या करना, अगर मुझे कीटोन ही बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा अल्कीन लेना है जिसके पास चारों के चारों क्या हो, अल्काइल ग्रुप। अब इसको मैं रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, R, यहाँ पे क्या आएगा, R, तो यहाँ पे क्या आएगा, R R R R, तो क्या मिला, अल्डिहाइड। अब क्या मिला अपने को, कीटोन। ये भी क्या मिला अपने को, सो कीटोन के लिए कंडीशन क्या है, कीटोन के लिए कंडीशन क्या है कि अल्कीन के पास क्या होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो ही वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। अब अगर मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन बनाना है, तो क्या करूंगा, एक के तरफ मैं एक कार्बन पे दोनों R ग्रुप रखूंगा, एक के तरफ पे एक R ग्रुप एक हाइड्रोजन रखूंगा। तो जो पहला प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या आएगा, RR। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH आ जाएगा, पहला प्रोडक्ट RR, यहाँ पे क्या आ जाएगा, RH। तो एक कीटोन मिला, दूसरा क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड। तो हम लोग ओजोनोलाइसिस करके वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नीट और जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस पे पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक
ट्रिक तुमको बताता हूं जिससे हम लोग उस रिएक्शंस को हम लोग याद रख सकते, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक डस्ट और व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, अल्किन को देख के हम लोग प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, तो उसको मैं सिखाता हूं वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूं, ये हमने एक ले लिया, अल्किन ले लिया, उसको मैंने क्या नहीं किया, ओजोनोलाइसिस फॉलो बाय रिएक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव प्रोडक्ट A+B, where A and B are, A और B क्या होगा, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुमको उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रिक लगाना है कि कैसे हमारा प्रोडक्ट हम लोग, कॉम्पिटिटिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रिएक्शन दे दिया, ए और बी क्या है तुमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ABCD। ठीक है, तो अगर हमको पूरा रिएक्शन करना है, हम लोग को पूरा रिएक्शन करना पड़ेगा। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को मैं अच्छे से लिख लो पहले। यहाँ पे क्या था, कार्बन के पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, फिर कार्बन था, कार्बन के पास क्या था, हाइड्रोजन। इस तरीके से था, मैं प्रॉपर लिखा। अब ओजोनोलाइसिस करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओजोन आएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ओजोन आएगा, ऐसा किए। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो देखो प्रोडक्ट में क्या आएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड H का प्रोडक्ट है, CH3CH2C डबल बॉन्ड H, CHO ग्रुप है ना, ये तो अपने को पता ही अल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये प्रोडक्ट है इसमें। दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे CH3CCHO मतलब ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मैच करो, दो प्रोडक्ट कौन से है तुम्हारे पास, यहाँ पे CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट आया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे पास, CH3C डबल बॉन्ड OH। प्रोसेस समझ में आया कैसे किया, पहले ओजोनोलाइसिस किया, फिर हमने उसको क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो ये दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिले। यहाँ पे देखो ये क्या मिला अपने को, ये प्रोडक्ट क्या है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। बी प्रोडक्ट क्या मिला अपने को, CH3C डबल बॉन्ड OH। नाउ मैच करो, फर्स्ट ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, ए मैच हो रहा है, बी मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखो, CH3CHO, बट यहाँ पे CH3CH2CHO है, यहाँ पे CH3CHO, यहाँ पे बी मैच हो रहा है, ए मैच नहीं हो रहा है, ये भी डिस्कार्ड करो। थर्ड CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, ये मैच हो गया। बी प्रोडक्ट CH3CHO, ये भी मैच हो गया, मतलब सी इज द करेक्ट। डी है क्या, पहला प्रोडक्ट मैच हो रहा है, दूसरा हो रहा है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव में तुमको सॉल्व करना। अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा अपने को, है ना, पहले हमने ओजोनोलाइसिस किए, फिर मन में उसको रिएक्शन करके देखे। बेटा ये सब प्रैक्टिस करोगे तो फट से तुमको एकदम क्लिक हो जाएगा, 1 मिनट में क्या आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल अल्किन देखो और प्रोडक्ट फाइंड करो, ऐसा तुम्हारा पास प्रैक्टिस होना चाहिए। सो हम लोग इसको कैसे, इस चीज को हम लोग और इजीली कर सकते हैं, वो चीज मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब यही रिएक्शन को मैं लिखता हूँ, देखो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस अल्कीन को मुझे क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना है। तो सिंपल ट्रिक बताता हूं। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और यहां पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगा देना, फट से प्रोडक्ट मिलता है। देखो क्या किया मैंने, ये दोनों को अलग कर दो और इनके बीच में C डबल बॉन्ड लगा दो, देखो मिल जाता तुरंत CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, प्लस यहाँ पे क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड OH, मिल गया अपने को प्रोडक्ट, है ना, एकदम इजी है। जैसे एक एग्जांपल लेता मैं, CH3CH2CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, इसको ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंपली क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड लगा दो, क्या है प्रोडक्ट, CH3CH2C CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना, सिंपल एकदम। तो क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, C डबल बॉन्ड लगा देना, तुमको तुम्हारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। 1 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, A compound on ozonolysis give this two aldehyde,
वन एल्डिहाइड वन कीटोन, आइडेंटिफाई ए को तुमको क्या करना है, आइडेंटिफाई। पहले ऑप्शन लिख देता हूं, फिर हम लोग ए को आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे। सो ये अपने पास 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन अब दिख जाएगा, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है, इसके ऊपर ज्यादा उतना नहीं, हमको पूरे क्वेश्चन में देख लिए कि कैसे उसको बनाना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिवर्स जाना है, जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज इसको रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं, जिसे फ्लैशबैक। कोई मूवी देखा होगा तुमने, पहले एंडिंग बताता है और फिर वो बता रहा कहानी सुनाना चालू करता है कि ऐसा हुआ था। तो इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अगर तुम लोग हायर स्टडीज में जाते हो, पीएचडी के फिर एमएससी वगैरह में, तो वहां पे तुमको एक चीज देखने मिलता है, रेट्रोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, कि प्रोडक्ट से रिएक्टेड को आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे प्रोडक्ट से रिएक्टेड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कीन है जिसको तोड़ने के बाद अपने को ये मिले, है ना। तो एक तो 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या है, हम लोग जो मैंने पहले सिखाया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगा देना। तो देखो ऐसा करेंगे तो मिल जाएगा अपने को CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड, CH3 CH3 C, पहला प्रोडक्ट मिल। दूसरा क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं था, यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करता तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, दोनों प्रोडक्ट कीटोन, मतलब यही प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट था क्या, नहीं, ये डिस्कार्ड हो जाता। तीसरा में अगर इसको मैं ब्रेक करता तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड हो, दोनों प्रोडक्ट यही मिलना चाहिए था, बट एक प्रोडक्ट ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड हो, तो कीटोन तो मिला ये, लेकिन ये एल्डिहाइड वो नहीं है जो हमको चाहिए, ये भी डिस्कार्ड होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखो, इसको हम लोग अल्कीन में कैसे बना, कभी कभी ऐसा करते समय क्या होता है, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको और एक तरीका बताता हूँ। अभी मैं फिर से वापस इसको लिख देता हूँ जैसा था, है ना। अब देखो इसको कैसे हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो पहले एल्डिहाइड को लिख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई थिंक सो। अभी इसको लिख दो ऐसे, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो दोनों प्रोडक्ट को ऐसे लिखना है कि उनके कार्बोनिल ग्रुप आमने सामने है। तो पिछले बार हमने क्या किया था, जब मैंने पिछला ट्रिक बताया था, हमने क्या किया था कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन लगाने बोला था। अब क्या करो, ऑक्सीजन को निकाल के डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन को निकाल दो, यहां से बाहर हटा दो और डबल बॉन्ड को जोड़ दो, CH3 CH2, यहाँ पे क्या बचा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या बचेगा, CH सॉरी C, यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 CH3। अब मैच कर लो, CH3 CH2 CH C CH3 CH3, मिल गया प्रोडक्ट, है ना। तो देखो सिंपल सा तरीका याद रखना है, अगर मुझे एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कीन बनाना है, ऑक्सीजन को निकाल के दोनों डबल बॉन्ड को जोड़ दो। और अगर मुझे अल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या लगा दो, दोनों के पास डबल बॉन्ड लगा दो। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड है कीटोन है, हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्कीन को अगर हम लोग ओजोनलाइज करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये ऑलवेज क्या प्रोड्यूस करता है, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड के लिए कंडीशन क्या है, the carbon atom must having at least one hydrogen atom। कीटोन के लिए क्या कंडीशन है, carbon atom must having both the hydrogen, sorry, carbon atom must having all the alkyl group, no hydrogen will be present there, then and then only on ozonolysis followed by hydrolysis it can give ketone, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुमको ये आना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट कि हाउ we can convert hydrocarbon, that is alkene, into we can say that alkene into aldehyde or ketone by which process, ozonolysis process। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अल्काइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। वेरी नेक्स्ट वीडियो में उसको देखने वाले हैं। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लेंथी है, बिकॉज़ डियर स्टूडेंट ये कांसेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग एक एक कंसेप्ट को लेके यहाँ पे क्या करेंगे, चलेंगे। तो आई होप यू कैन एंजॉय द वीडियो। अगर तुमको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज SR Academy of Chemistry, एंड टेल टू योर फ्रेंड आल्सो कि वो भी सब्सक्राइब करे और वो भी इस चीज का बेनिफिट ले। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे तुम्हारा पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ, जितनी भी नीट के लिए और JEE के लिए यूजफुल, इवन यू कैन प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम आल्सो, राइट। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मैं तुम्हारे लिए और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।